نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی آبی جارحیت برقرار، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ستلج کے خوفناک موجیں بلند سے بلندتر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہیڈ گنگا سنگھ سے پانی کا اخراج 2,53,000 سے بھی تجاوز کر گیا۔ ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کے ساتھ ایمپریس برج پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ جاری۔ ستلج کنارے مزید نشیبی علاقوں سے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت۔ بہاول نگر سے بہاولپور تک انتظامیہ ریڈ الرٹ۔ بھارت میں بنے ہریکے ہیڈ ورکس سے پاکستان کی طرف مزید پانی چھوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا اخراج انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ سلیمان کی پر بھی اونچے درجے کا سیلاب، یہاں پانی کی آمد 1,24,274 کیوسک اور اخراج بھی 1,24,274 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 84,899 کیوسک ریکارڈ ہے۔ یہ اخراج 84,899 کیوسک ہی ریکارڈ کیا گیا۔ میلسی سائفن سے پانی کا 39,048 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جبکہ ایمپریس برج پر ستلج میں پانی کی سطح 8 فٹ تک پہنچ گئی ہے اور ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 1,23,717 کیوسک تک جا پہنچا ہے، جبکہ اخراج 1,09,747 کیوسک ریکارڈ کیا گیا اور بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ دریائے ستلج میں کہروڑ پکا کے مقام پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پانی کی تیز دھاروں نے زمینی کٹاؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ شاہپور پتن کے مقام پر چھوٹا بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلا نے بستیوں کا رخ کر لیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں عاشق حسین قریشی سے۔ جی بالکل، دریائے ستلج میں اس وقت سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کروڑ پکا کے علاقوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر تیزی سے پانی جو ہے وہ زمینی کٹاؤ کر رہا ہے اور بہت سے علاقے جو ہے وہ کٹاؤ کی وجہ سے زیر دریا برد ہو گئے ہیں۔ کافی مکانات جو ہیں وہ بھی دریا برد ہو گئے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں شاہپور کے پتن پر موجود ہوں، یہاں پر جو چھوٹا جہاں پر بند باندھا گیا تھا وہ جو ہے یہاں پر ٹوٹ چکا ہے۔ میں اپنا کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ دکھائے، یہ بند تھا چھوٹا جو ٹوٹ چکا ہے اور پانی جو ہے فصلوں میں کہوں گا کہ فصلیں بھی دکھائے کہ یہاں جو فصلیں ہیں یہ فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور یہ بند دکھائے کہ یہاں پر ٹوٹ گیا۔ دیگر جو علاقے ہیں، تنویر آپ ذرا کلوز ہو جائیں اور یہاں پر دکھائیں صورتحال کہ کس طرح پانی جو ہے وہ تیزی سے جو زرعی رقبے ہیں ان کو جو ہے زیر آب آ رہے ہیں اور یہاں پر صورتحال دیکھیں کہ بند کو مضبوط نہیں کیا گیا تھا۔ اگر اس بند کو مضبوط کر دیا جاتا تو یہ زیادہ نقصان نہ ہوتا اور یہ فصلیں جو ہیں وہ زیر آب نہ آتی۔ اس وقت بہت سے یہاں پر دیکھیں جو چھوٹے مکانات تھے وہ بھی زیر آب آ چکے ہیں اور اس وقت بہت سا جو علاقہ ہے جو زرعی فصلیں تھیں کاشت کی ہوئی تھی وہ زیر آب آ گئی ہیں اور پانی تیزی سے جو ہے آبادیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو یہاں پر جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں بند کے بالکل ساتھ جو علاقے ہیں جو آبادی ہے ان کا انخلاء نہیں کیا جا سکا کیونکہ انتظامیہ وہاں پر انخلاء کے لیے آئی تھی، لیکن وہ لوگ جو ہے اپنے گھر چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے۔ تو ابھی بھی ہم جب یہاں پر پہنچے ہیں تو بہت سی آبادی جو رہائشی لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ایک طرف بند ٹوٹا ہوا ہے، پانی جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ زمینی کٹاؤ کر رہا ہے اور بہت سی فصلیں جو ہیں وہ بھی زیر آب آ گئی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے بند کے دوسرا جو بند باندھا گیا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی بالکل آبادی جو ہے وہاں پر موجود ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ابھی تک نقل مکانی نہیں کی۔ لیکن اس میں ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی ہے، وہ لوگ جہاں پر موجود ہیں کافی سارے جو ہم نے علاقے ہم نے وہاں پر جب رپورٹنگ کی ہے وہاں علاقے کور کیے ہیں تو وہاں پر یہ بھی پریشانی نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو جو ہے وہاں سے جو ہے سامان اٹھا کے دوسری طرف منتقل ہونا جا رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے انتظامیہ کے جانب سے کوئی کنوینس نہیں دی جا رہی۔ انتظامیہ دورے تو کر رہی ہے، ہر جگہ پر جا رہی ہے، لیکن خالی دورے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنی سواریاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اپنے سامان کو دوسری جگہ منتقل کیے جا سکے۔ تنویر آپ یہ علاقہ دکھائیں کہ جہاں پر جو آبادی ہے اس کے بھی قریب پانی پہنچ گیا ہے، وہاں پر لوگ ہمیں دور نظر آ رہے ہیں، اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور یہ ساری جو یہاں پر فصلیں تھیں وہ زیر آب آ گئی ہیں اور پانی تیزی سے جو ہے وہ آبادیوں میں داخل جو ہے اگر اسی طرح بند کو مضبوط نہ کیا گیا۔ نوشہرہ جدید بستی آباستی میں دریائے ستلج کے پانی نے تباہی مچا دی۔ گھروں کے چاروں اطراف سیلابی پانی جمع ہو گیا، کئی فصلیں مکمل طور پر تباہ۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک حبیب لونگ سے۔ ہاں جی بالکل، دریائے ستلج کی جو بے رحم جو لہریں ہیں ان کسانوں کو، کاشتکاروں کو لے ڈوبا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم ایک علاقہ مکین موجود، اس سے بات کریں گے۔
भाई किन मुश्किलात का सामना है आपको? जी सर, ये चौथा पांचवा दिन है सैलाब इन आबादियों में दाखिल हुआ है। इलाका मकीन जो है ना वो घर से बेघर हो चुके हैं और उनके माल मवेशी भी दरबदर हैं और इस वक्त शदीद मुश्किलात हैं खुराक के हवाले से, यानी आवाम को खाने पीने के हवाले से शदीद मुश्किलात हैं क्योंकि वो बेघर हो चुके हैं तो उनके खाने बनाने का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हुकूमत की सतह पे भी कहीं कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। माल मवेशी भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल रही और ना ही खाना पीना मिल रहा है। और हुकूमत जो है वो सिर्फ दावे और नारों की हद तक है। या अभी थोड़ी देर पहले डीसी साहब बावलपुर के और एसीओ यहाँ से विजिट किया, उन्होंने एक फौज जफर मौज के साथ गुजरे और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, शाहाना एक प्रोटोकॉल था उनके साथ, उन्होंने एक जगह पर खड़े होकर फोटो सेशन करवाया, मीडिया टॉक की और निकल गए। किसी सलाम मुतासरीन में से किसी के साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, उनके मुश्किलात मालूम करने की कोशिश नहीं की और ना कोई इस किस्म के हुकूमती सतह पर यहाँ कोई इंतजामात हैं। और मजीद ये है कि आगे मजीद मुश्किलात बढ़ेंगे क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी हैं, जो उनका जरिया माश था वो खत्म हो चुका है और इधर से ये बिजली के बिल भेज देंगे और महंगाई का तूफान आ जाएगा। तो हुकूमत चाहिए कि ये जो डूब गए हैं अब इन फ्यूचर उनके लिए वो कोई एक प्लान बनाए और हर एक फर्द को, हर एक घर को मुकम्मल रिलीफ दे, उनके नुकसान का इजाला करे और आइंदा एक साल के लिए उनकी इस अंदाज से मदद की जाए कि वो आसानी से अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का जो है ना वो गुजर बसर कर सके। जी, जैसे कि आपने सुना अभी मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं और जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आई हैं बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तो लियाका मकीनों की तरफ से यही कहा जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान से कोई ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें हर फर्द को हर। बताएं कि लोधरा के दराई इलाके बस्ती सैयदी वाला में दराए सतलुज का बंद टूटने के बाद मकीनों को इंतजामिया और पुलिस ने बाहिफाजत मुंतकिल कर लिया। जहां चंद रोज कबल तक जिंदगी की भरपूर गहमा गहमी होती थी, वहां अब देखने को भी इंसान नहीं मिल रहे। मजीद बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती सैदी वाला में, जहां आज अलग सुबह टूटने वाले बंद ने तबाही मचा दी है। आपको बताते चलें कि बस्ती बढ़ेल वाला जो भावलपुर की तहसील में आता है, वहां से दरियाई बंद टूटा है, बहुत बड़ा शगाफ पड़ा और उसके बाद फिर लोधरा की हदूद में पानी जो है वो चलता हुआ सैलाब इस वक्त बस्ती सैदी वाला को ज़ेर आब करता हुआ झोंक जानन की तरफ रवां दवा है। पानी की रफ्तार बहुत तेज है। आप पूरा मंजर इस वक्त देख सकते हैं कि ये बस्ती जो कम से कम 400 से 500 घरानों पर मुश्तमिल है। तमाम घर जो हैं वो खाली कराए जा चुके हैं। इंतजामिया जो पहले से ही फाल थी, डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर, डीपीओ लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक, पीरा फोर्स रेस्क्यू गुज़िश्ता 10 रोज से इस बस्ती को फोकस की हुई थी क्योंकि यहाँ के दरियाई बंद समेत झोंक जानन और हयातपुर के बंद को शदीद खतरात लाक थे और आज पहला बंद टूटा और उसने बताया कि सैलाब ने कि वो किस जोर शोर से लोधरा की तबाही की जानिब गामजन है। ये बस्तियां अब खाली कराई जा चुकी हैं। तमाम इंसानों को, उनके मवेशियों को, उनके सामान को यहाँ से पुलिस बाहिफाजत मुंतकिल करा चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार इन खला के बावजूद चोरी छुपे वापस अपने घरों में पानी में से तैरते हुए जा रहे थे। उन्हें आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस किया गया और सैलाबी रेला जो आज बंद टूटने के बायस लोधरा की हदूद में दाखिल हुआ, उसे अब तकरीबन 50 से 55 अफराद को आज रेस्क्यू 112 ने रेस्क्यू कर लिया है। उन्हें घरों से निकाल लिया है। उनके सामान, उनके माल मवेशी जो इक्का दुक्का बचे थे वो भी खाली करा लिए गए हैं। लोगों को यहाँ लोधरा में इंतजामिया की बार बार यही अपील रही है और अब भी है कि खुदारा उनका साथ दें, रिलीफ सेंटर्स में चले जाएं, महफूज मुकामात पर चले जाएं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन लोग भी मुसलसल बज़िद हैं कि किसी सूरत अपना घर नहीं छोड़ना। जिन्होंने अपने घर के 10 अफराद में से 9 भेजे थे तो एक फर्द अभी भी घर में मौजूद है और इस उम्मीद पर कायम है कि शायद उसका घर बच जाएगा और वो किसी तरह घर बना लेंगे। फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि लोगों ने इस बस्ती के साइडों में घरों के दीवारों के साथ साथ मट्टी डालकर अपनी मदद के तहत गुज़िश्ता 15 रोज में घरों को महफूज रखने की कोशिश तो की है, लेकिन जो पानी की रफ्तार है वो बता रही है कि यहाँ कुछ नहीं बचने वाला। बस्तियां इस वक्त वीरान चुकी हैं, आदम नाम की कोई शय नहीं है। अब यहाँ तैनात है तो सिर्फ पुलिस, इंतजामिया, रेस्क्यू, पीरा फोर्स और दीगर अदारे तैनात हैं ताकि अब यहाँ कोई शख्स पानी की तरफ ना जा सके। जमीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लोधरा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज भी पेश। पाक फौज, पुलिस और इंतजामिया का मिलकर इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का फैसला।
फौजी हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नजीर ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। डीपीओ अली बिन तारिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन शाह हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सैलाब से 22 मवाज़ियात शदीद और 11 आर्जी मुतासिर हो सकते हैं। मुतासिरीन के लिए 24 रिलीफ कैंप्स कायम और 3 टेंट सिटीज बनाए गए हैं। मरकजी मुस्लिम लीग साहू जमलेरा कच्ची पक्की में इफ्तार रिलीफ कैंप कायम। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में 700 से ज्यादा मरीजों का मुआयना करके अद्वियात दी गई। मेडिकल कैंप में खाने का भी एहतमाम किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने सैलाब में घिरे मुतासरीन को रेस्क्यू भी किया। नाज़रीन, दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से 138 मवाज़ियात को खाली करा लिया गया। सैलाबी रैली के पेश नजर शेख शाह पुल और हेड मोहम्मद वाला पुल को बचाने के लिए ब्रीचिंग पॉइंट्स पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वसीम शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद तफसीलात वसीम की जुबानी जानेंगे। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त में हेड मोहम्मद वाला के पुल पर मौजूद हूँ और इस पुल की अगर हम बात करते चलें तो इस पुल पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का जो बहाव है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला पुल पर एक साइड की ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है। बरसाती रेला जो है वो इस वक्त करीब है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके इस साइड का व्यू, तो अंधेरे में ये सारा पानी जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और बात करते चलें अगर इसकी, तो जो शहरी हैं यहाँ पर वो भी खासे परेशानी का जो है वो शिकार हमें दिखाई देते हैं, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि शहर मुल्तान की अगर हम बात करते चलें तो शहर मुल्तान में खसूसी तौर पर जो मुश्किलात का सामना है वो शहरियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की मकीनें, लोगों के मकानात और लोगों की जो ज़मीनें हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी के अंदर जो है घिर चुकी हैं। आगे हम आपको जाकर जो है वो ब्रीजिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी दिखाते हैं कि इस वक्त ब्रीजिंग पॉइंट्स का क्या सूरत हाल है, क्योंकि मुकम्मल जो यहाँ पर पीछे मेरे आँख के अंदर जो है वो लगा दिए गए हैं, ड्रम्स जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं। और अगर रेला 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा होता है, तजावज़ करता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि हमने इसको जो है वो ब्रीच करना है। इस वक्त अगर मैं दिखा सकूं तो ये जगह जगह पर जो है वो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ साथ और अगर पॉइंट्स की बात करते चलें तो वो भी पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस पूरे एरिया को जो है वो यहाँ से हटाने के लिए, इस पूरी जगह को जो है वो ख़त्म करने के लिए ये तमाम अमल जो है वो इस हवाले से किया गया है। कुछ और अगर हम बात करते चलें तो ख़वातीन हमें यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। आपका घर कहाँ पर है? हमारा मुल्तान। मुल्तान। आप यहाँ पे क्या करने के लिए, देखने के लिए आए? देखने के लिए आए थे हम। अच्छा, तो ये बताएं क्या अंदर बस्तियों क्या हालत देखते हैं? पानी है सारा? सारा घरों में पानी है, सारा बेचारे सब सामान लेके चले गए हैं यहाँ से। कई तो बुड़ गए हैं, कई तो चले गए हैं बेचारे यहाँ से। अच्छा, इस वक्त अगर हम दिखा सकें तो ये मनाजिर जो हैं, थोड़ा सा हमसे चाहेंगे कि इस साइड पे आप हो जाएं। ये वाले जो मनाजिर हैं, ये फैसला किया गया है कि यहाँ पर जो है वो फैसला किया गया कि इसको जो है वो तोड़कर पानी को आगे निकाला जाएगा। कौन सी आबादियां हैं ऐसी, और जब आप वहाँ गई वहाँ क्या सूरत हाल देख रही हैं आबादियों की? आबादी तो हमारे मुल्तान का खतरा है, छोटे छोटे बच्चे हमारे मुल्तान का खतरा है। बस यहीं पे जो कुछ होता है वो कर लेंगे, लेकिन हम खुद इतने परेशान हैं। मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इनका ये कहना है कि ऐसी सूरत हाल जो है वो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि छोटे जो इलाके हैं मुल्तान से जुड़े हुए, इसमें भी जो है वो शहरियों को मुश्किलात का खतरा है। और इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया जो की जानिब से जो सहूलियात दी जा रही हैं मुतासरीन के हवाले से वो भी बहुत बेहतर हैं। और वहाँ पर जो है वो ख़वातीन अपने बच्चों के हमरा मौजूद हैं खैमों में, जहाँ पर जो है वो मुनासिब सहूलियात इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही हैं। अगर पानी का रेला 8 लाख क्यूसिक से तजावज़ करता है तो इस को ब्रीच किए जाने वाले इम्कान जो हैं वो भी जाहिर है। जी, इम्कान भी जाहिर हैं। वसीम शहजाद, अपडेट करने का शुक्रिया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली सैलाब मुतासरीन के बाहिफाजत इनखला के लिए सरगर्म। थाना सदर शुजाबाद के इलाका मौजा भगड़ी में सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुंच के मुतासरीन के महफूज इनखला की आज खुद निगरानी की। मुतासरीन को सैलाब ज़दा इलाकों से निकलवा कर सरकारी गाड़ियों में सवार करवाया। रिलीफ कैंप तक पहुंचाने से मुतालिक हिदायत जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सीपीओ मुल्तान सादिक अली सैलाब मुतासरीन के इनखला की निगरानी के लिए पहुंच के थाना सदर शुजाबाद के इलाका मौजा बगड़ी में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
स्पेशल सेक्रेटरी है जनूबी पंजाब मोहम्मद शहबाज हुसैन जिला राजनपुर पहुंच के स्पेशल सेक्रेटरी ने सैलाब मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट वेयर हाउस में रिलीफ सामान का मुआयना किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी ने कंट्रोल रूम्स को हर वक्त अलर्ट रहने की हिदायत की। नाजरीन, हर तरीमों पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाबी रैला जीवाना बंगला से मुजफ्फरगढ़ की हदूद में जल्द दाखिल हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, हर तरीमों पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाबी रैला जीवाना बंगला से मुजफ्फरगढ़ की हदूद में जल्द दाखिल हो जाएगा। सैलाब के हवाले से डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर तरीमों पर पानी की सतह में 5.5 लाख क्यूसिक से जायद इजाफा हुआ। उधर मियांवाली में जिना बैराज चश्मा बैराज में पानी की आमद में मामूली इजाफा। जिला भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल नॉर्मल, निशेबी इलाके सैलाबी पानी की जद से बाहर आ गए। इंतजामिया हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए अलर्ट आपको अपडेट कर रहे हैं। जिना बैराज और चश्मा बैराज में पानी की आमद में मामूली इजाफा। जिना बैराज में पानी की आमद 2,20,240 क्यूसिक। जिना बैराज में पानी का अखराज 2,04,240 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध और चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। तरन्ना मोहम्मद पनाह में मुतवक्का सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर इंतजामिया मुतहरिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद का असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर इब्राहिम मिलादी खर के हमरा सैलाबी इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप में गए, सहूलियात का जायजा लिया, मुतासरीन से मुलाकातें की, मसाइल सुने, इलाके से नकल मकानी में मदद की यकीन दहानी करवाई। नाजरीन, सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी का पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अजमल खान की रंगपुर आमद। MP ओन हमीद और इंतजामिया के हमरा फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया था। मजीद जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी बिल्कुल, रंगपुर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। अब वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जो है अब सूबाई वजीर मदनियात शेर अली गुरचानी ने जो है वो दीगर इंतजामिया के साथ रेस्ट हाउस जवाना बंगला में कायम जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किस हवाले से जाने के साथ बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो मुतासरीन उनकी सहूलियात के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और इसको हुकूमत पंजाब जो है फ्लड के इस मुश्किल घड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह आपको पता है पूरे पंजाब में इस वक्त फ्लड की सिचुएशन चल रही है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब के अंदर काफी अरसे के बाद इतना ज्यादा पानी आया है जिसकी वजह से बहुत से लोग मुतासर हुए। 20 लाख से ज्यादा इस वक्त लोग मुतासरीन में से हैं। पंजाब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। हमारा पहला फोकस जो है इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू के ऊपर है। हमने 22 के करीब मुजफ्फरगढ़ के अंदर कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं आपके सामने इसकी सिचुएशन है, जहां पे 3 टाइम का लोगों को खाना दिया जा रहा है। हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटीज है। जानवरों के लिए जो चारा है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साफ पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर सारे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रही हैं। हर मिनिस्टर की एक एक डिवीजन के अंदर ड्यूटी लगाई गई है। मुझे मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान डिवीजन में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। हम पिछले 3 दिन से मुसलसल मीटिंग कर रहे हैं। अभी तक पानी का जो पीक का रेला है वो मुजफ्फरगढ़ के अंदर दाखिल नहीं हुआ। इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो उनकी इस वक्त असेसमेंट है कि हमारे पास तकरीबन कोई 6-6.5 लाख क्यूसेक का पानी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगर इतना पानी है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दरिया के अंदर के जो लोग हैं शायद वो तो मुतासर हो, लेकिन कोई बंद शायद हमारे उम्मीद नहीं टूटेंगे। इससे ज्यादा पानी अगर कोई होता है तो उसके लिए रिलीफ कट्स जहां जहां देने वो जगह भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है। तो पंजाब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को हम मैक्सिमम रिलीफ दें। जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए अगर किसी भी चीज की कोई कमी हमारी तरफ से नहीं हो रही है। इधर ये है, जब तक ये लोग वापस अपने घरों को नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है, हमने भी इधर रहना है। तमाम इंतजामिया मुतहर्रिक है। जब तक ये लोग वापस अपने खैर खुशी से अपने घरों को नहीं जाते। जलालपुर पीरवाला में सतलुज और चनाब से मुल्हिका इलाकों में मुमकिना सैलाबी खतरात, मुतासरीन का इनखला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार अली खान का फ्लड कैंप्स का दौरा। कहा, कैंप्स में मुतासरीन के लिए खाने का इत्तमाम, जानवरों का चारा भी मुयसर है। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके इल्म में है जैसा कि जलालपुर दरिया चनाब और दरिया सतलुज के दरमियान वाक़या है, तो इन दोनों में शदीद सैलाबी रहने आने का शदीद अंदेशा है, जिसके पेश नज़र हमने हर जगह पे अपनी गाड़ियां भी खड़ी कर दी हुई हैं कि लोग इसमें बैठ के नकल मकामी कर सकें, और वसी पैमाने पर नकल मकामी हो भी चुकी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जलालपुर को हर तरीके से
कबीरवाला के मकाम पर दरिया चनाब में इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन मौजा गुलपुर पंजीरी से 2 खवातीन और 8 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कश्ती के जरिए इमदादी कैंप तक पहुंचाया। रेस्क्यू किए जाने वालों में 4 माह का बच्चा भी शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कबीरवाला के मकाम पर दरिया चनाब में इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन मौजा गुलपुर पंजीरी से 2 खवातीन और 8 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। दरिया रावी हेड सदनाई अब्दुल हकीम पर सैलाबी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। हेड सदनाई पर पानी की आमद 90,000 क्यूसिक और पानी का अखराज 80,000 क्यूसिक। हेड सदनाई पर दफा 144 का नफाज कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं दरिया रावी हेड सदनाई अब्दुल हकीम पर सैलाबी पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगे। दफा 144 का नफाज कर दिया गया। उधर मुल्तान में मुमकिन सैलाब के पेश नजर लोगों का इनखला जारी। बस्ती लंगड़ियाल में कायम 85 खैमों में 600 अफराद मुकीम। फ्लड रिलीफ कैंप में 6 मौजा जात के लोगों को ठहराया गया है। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मुल्तान में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी है। इस वक्त इनखला करके जो है वो बस्ती लंगड़ियाल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में जो है वो लोगों को मुतासरा लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन इंतजामिया की जानिब से 85 के करीब जो है वो खैमे लगा दिए गए हैं और यहाँ पर 600 के करीब जो अफराद जो है वो उनको इनखला करके यहाँ पर लाया जा रहा है। यहाँ पर इंतजामात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें, लाइव स्टॉक की, महकमा सेहत की और इसके साथ सिविल डिफेंस और इसके साथ दीगर टीमें जो है वो मुल्तान की ज़िली महकमों की यहाँ पर मौजूद हैं। जो आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी यहाँ पर दी जा रही हैं और दीगर सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही। इंतज़ामिया की तरफ से आपको यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप में खैमों में लाकर जो है वो बिठा दिया गया। क्या इंतजाम दिए यहाँ पर किए गए? इंतजाम सर जो चीज़ है टाइम पे हम दे रहे हैं, वो खा रहे हैं जो चीज़ है हमारे पास। बाकी वो कैंप पे वो खाना कितने टाइम का दे रहे हैं आपको? खाना 3 टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे आता है उस टाइम मिल जाता है। जी बेशक। ठीक है, हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे? घर जो है वो पानी में डूब के। बिल्कुल सहूलियत तो वैसे तो सब कुछ है, हमें कैंप नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो 8, 9, 10 यानी कि 10-12 अफराद है घर के। हमें एक कैंप भी नहीं मिला। हम कैंप नहीं मिला, हमें कैंप नहीं मिला। मुँह मुलाजम पे कैंप मिल रहा है तो वो कहते हैं कि ना आप उधर चले जाओ, स्कूल में चले जाओ। तो हमारे पास बच्ची है, वहाँ लाइट चली जाती है, हम उधर गए हैं, उधर से वापस आ गए हैं क्योंकि इधर खुला माहौल तो है। सारा दिन धूप में गुजारा है। अच्छा, ये आपने बात सुनी मुतासिर। अब आपको बताएं कि मियांवाली थाना सदर की बिल्डिंग न होने के बायस कई मसाइल पैदा हो रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अजमर खलल का कहना है थाना सिटी और थाना सदर एक ही बिल्डिंग में कायम है। सरगोदा मोड़ के करीब थाना सदर की न्यू बिल्डिंग बनने जा रही है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई माह से मियांवाली का थाना सदर जो है मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल होता रहा है, लेकिन अब उसको अपनी जगह मिलने जा रही है। कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड राय अजमल खरल साहब। आपसे इस सवाल से हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, थाना सदर हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इशू था, दोनों थाने एक ही जगह पे थे, सिटी एरिया में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम थाना जो है वो सदर शिफ्ट कर रहे हैं सरगोदा मोड़ के साथ। उससे ये होगा कि वो अपना जितना भी एरिया है उसको वो इंशाल्लाह संभालेंगे। इसके अलावा हमारी कबूल खेल जो चेक पोस्ट है वो नहीं बनने जा रही है, वो भी बिल्कुल जो वो मोड़ है उसके साथ आगे बनेगी इंशाल्लाह ताला, वो बड़ा एक अच्छा है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अवेटेड था वो ये डीपीओ ऑफिस है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, शुरू से चला आ रहा है और इस तरह से मतलब चीज़ें उससे ऑर्गेनाइज नहीं है। तो हमारा डीपीओ ऑफिस भी नया बिल्कुल इसके जो साथ है इंशाल्लाह उस जगह पर बनने जा रहा है। और उसके अलावा हमारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ बचरा थाना, जो हमारी स्कीम रुकी हुई थी काफ़ी अरसे से, इंशाल्लाह वो भी अप्रूव होगी और वो भी इसी साल हम कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी। अख्तर मजाज अपडेट करने का शुक्रिया। महकमा औकाफ की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों पर छापे। मुल्तान डिवीजन की 6 दुकानों को सील कर दिया गया। 2 दुकानों के किराएदारों ने दुकानें आगे दे रखी थी। तफसीलात अलिश बासित से जानते हैं। जी बिल्कुल, औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उधर कोई भी इलीगल तरीके से काम हो रहा है या कर रहा है उसके खिलाफ जो है औकाफ डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान डिवीज़न में ऑपरेशन जो है जारी रहते हैं। इसी हवाले से जो है ऑपरेशन किया गया। 6 दुकानें भी सील की गई हैं। कौन कौन सी दुकानें हैं और क्यों सील की गई हैं ये जानने के लिए मेरे साथ सैयद अयाजुल हसन गिलानी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं इधर के। इनसे जान लेते हैं कि सर कौन सी दुकानें सील की गई हैं और उधर क्या काम हो रहा था, आप लोगों ने क्यों सील किया? महकमा औकाफ के किराएदारान तकरीबन 350 के करीब है यहाँ पर हमारे मुल्तान डिवीज़न में,
اور گاہے بگاہے محکمہ اوقاف کی جانب سے ان کو انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہیں، ان کو انفارم بھی کیا جاتا ہے، تنبیہ بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللیگل ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، جیسے کہ ہمارے شکمی کرایہ داران ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی شاپ پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پروہیبیٹیڈ ہے اور وہ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے. اور اگر ہمارے ریکارڈ کے مطابق اگر ایک شاپ جس کے نام ہے وہی بیٹھے گا، اگر وہ اس طرح نہیں کر رہا تو پھر وہ اللیگل ہے، اللیگل آکوپینٹ کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جو نادہندگان ہیں اوقاف کے جن کے خلاف ایریئرز ہیں، ہمارے پالیسی کے مطابق، رول کے مطابق 2 مہینے کا جو کرایہ ادا نہیں کرے گا اس کی شاپ جو ہے وہ